Hello, students. Today, as we have before in my videos, we have discussed about this flower, the sexuality of the flower. Today, we'll discuss about the general description of the floral parts. I think so. Till here, you liked my material or the explanation. If you understood, then do please subscribe and like my channel. This will exactly motivate the things out here. So, going with the general description of the floral parts as we have discussed before also, एक थोड़ा सा recap लेते हैं. What is the different parts of the flower we talked about? That was the calyx word, collectively called as calyx. किसको बोलते हैं? Sepals को. Then petals, the colorful part, they are called as the corolla, collectively called as corolla. Then we talked about the androecium, the stamen part, that is the male part, stamen, androecium, androecium, and the gynoecium. Okay ji, that is the style, stigma, or the simply we can say carpel. Okay, men, यहाँ से ध्यान रखना तो याद हो जाता है कि that is the male part of the flower and this is the female part. Okay जी. Now coming back to it, few of the modifications are there. हमें जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? जैसे भी आप फ्लावर्स अगर बाहर देखते हैं, we can see the different flowers like marigold अभी बहुत अच्छे से हो रहा है, रोज अगर आपको दिख रहा है, then sunflower हमें दिख रहा है. So what is the difference of the, we can say, the arrangement of the petals and the sepals, or the type of the sepals and the petals over here? So what we exactly notice, और बच्चों सबसे अच्छी बात है कि you can see the flowers around you, whether it is of grass, whether it is a small thorn or a wild variety. Just check the flowers over there. Don't just bring it near to it, क्योंकि जो pollens होते हैं which can be allergic to you, so just don't try to smell that particular flower. Take away from you and then just see the arrangement of their petals, the sepals, what are they, how they are doing. जब जितना आप नेचर से जुड़ेंगे उतने आप जल्दी सीखेंगे. So when we talk about the calyx sepals, we all know that they were usually की बात कर रहे हैं हम, they were green in color. And now basically they are usually 4 to 5 in number, 4 to 5 in number. So we say that they may be, अब जरूरी नहीं है 4 to 5, 4 to 5 जनरल देखा गया है. It might be less, it might be more than that. Okay, when these condition, there are two conditions over here, we can say, can divide it into two conditions. One is the poly condition, another is the gamo condition. Two words are used over here, polysepalis and poly means different. Polysepalis साइंस का एक बहुत अच्छे से, हमें एक जनरल टर्म अगर अपन उठा लें और वो वर्ड कहीं भी यूज करें, उसका मीनिंग उसके साथ पर्टिकुलर में जुड़ जाता है. सेपल्स है, ग्रीन इन कलर है, पॉली है मतलब डिफरेंट डिफरेंट, गैमो मींस जॉइंट, यूनाइटेड. सो सेपल्स वाली कंडीशन. सो व्हेन द सेपल्स आर और मे बी फ्री, if they are free, then it is called as polysepalis, and when they are fused, then this condition is called as gamosepalis. अब इसमें फ्यूज और इसमें क्या बात है कि जस्ट मेक यू सी दिस, इसको आप जनरल देख भी सकते हैं, बाहर देखिएगा फ्लावर्स में कुछ में व्हेन दे आर फ्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री जस्ट नाउ, इट मीन द सेपल्स आर, जैसे हमें रोज में देखना बहुत अच्छे से सेपल्स जैसे कर्ल्स हो जाते हैं, है ना, क्योंकि पेल्स ऊपर आते हैं, तो दे आर लिटिल मोर कर्ल टाइप, यानी कि फ्री हो गए. वहीं पे फ्यूज की बात करते हैं तो फ्यूज मींस दैट दे फॉर्म समवट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड इस तरह से ये कंडीशन क्या है, गैमो. एंड वी कैन सी द पेटल्स ओवर इट. अब पेटल एग्जैक्टली कहाँ होंगे, ये पेटल्स इसके ऊपर ही, यहाँ से. ओके, सेम यार, यहाँ से फ्लावर अगर राइज होता है, ओवरी वाला पार्ट, एंड वेरियस फ्लावर पेटल स्ट्रक्चर.
Okay, so this condition is here, we can say that this is free, they are usually free. इसको इस तरह से भी बना सकते हैं आप, green in color, this is the stock over here. Okay, when it is free, not joined in between, this is called as polycephalus conditions. And when they are joined or fused, other word is that they are fused, इस तरह से भी होते हैं. Okay, so that is called as the gamocephalous conditions. And especially in the case of the this hibiscus बहुत general flower है जो हमें बाहर दिखता है, we can see that they have a second series of sepals also, and that time, very important over here, second set of series of sepals is there, that is called as epicalyx. देखिएगा आप, जैसे इस तरह से अगर वो प्रेजेंट है वहां पे, मैं येलो से करके देखती हूँ, यहाँ पे एक और ग्रीन कलर का इस तरह से प्रेजेंट होता है कुछ फ्लावर्स में. इट मीन्स दैट टू कंडीशंस है, दैट इज कॉल्ड एज द एपिकैलिक्स. कुछ में और भी होता है, समवेयर यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. Okay, so they can be modified into the different forms. So when the flowers are open and the sepals may fall off or persist, sepals are usually green in color. I'm just reading from a book itself, and they are brightly colored. Now if in some case, हमने ये पहले भी पढ़ा था, if in some case when the sepals are, हमने क्या बोला था, सेपल्स और कई बार क्या होता है, सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, सो दैट इज कंडीशन पेरियंथ, है ना. सो यहाँ पे भी हम एक वर्ड यूज करते हैं, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, व्हेन द सेपल्स आर नॉट green in color but they are brightly colored as petals, they are brightly colored as petals. Okay, now when they are brightly colored as petals, then the word is used over here, petaloid sepals. I'm just changing this pen, petaloid. क्यों? क्योंकि petaloid की तरह हो गए हैं. Okay, so it is called as petaloid sepals, petaloid sepals. as in, अब इसमें एग्जांपल भी बहुत अच्छे से दिया है, ये कलर थोड़ा सा डार्क हो गया हमारे लिए, इन गुलमोहर. ओके जी, सो क्योंकि गुलमोहर में आप देखिएगा वो रेड इन कलर का होता है. एग्जाम्पल इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके जी, एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस, व्हेन वी से अबाउट द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स, हमने पहले भी क्लास में पढ़ा है कि व्हेनेवर द सेपल्स आर ग्रीन इन कलर तो खाना बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बड, इट प्रोटेक्ट्स यंग फ्लावर बड, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन देता है वो when it is in the flower is in bud stage, as well as because they are green in color, so they perform photosynthesis. What is important over here, your understanding should be there, at least if asked you are able to give the particular few points regarding. देखो, नंबर देना वो टीचर के हाथ में होता है, वो जितना मटेरियल उसके अकॉर्डिंगली लग रहा है वो नंबर देगा आपको. तो बेटा नंबर के पीछे जाइए, बट उससे पहले अंडरस्टैंडिंग के पीछे जाइए. आपको अंडरस्टैंड हो गया, समझ में आ गया, जस्ट राइट इट आउट. हो सकता है आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट इफ यू नो द फ्लो चार्ट ऑफ इट, यू विल बी एबल टू डिफाइन द particular thing, that you know that you are knowledgeable person. Okay, so now this was about the calyx. अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज दी कोरोला. कोरोला, आई थिंक सो येलो पेन इज वर्किंग गुड. कोरोला इज अ कलेक्टिव टर्म, है ना.
अकेला करोला नहीं वर्ड यूज करेंगे, हम बोलेंगे करोला इज अ कलेक्टिवली टर्म विच इज यूज्ड फॉर द पेटल्स. ओके जी, एंड वी ऑल नो दे आर ब्राइटली कलर्ड. For the attraction of the insects. So as well as they might be in not in a even a single world, they can be of a different worlds also. मतलब एक के बाहर एक, जब हम बहुत सारे ऐसे कलरफुल फ्लावर्स देखे देखा ना, एक सीरीज होता है उसमें, इन द सेंस एक सीरीज इन द सेंस अगर आप फ्लावर देख रहे हैं तो हमें अब दूसरी लेयर भी दिख रही है पेटल्स की, कईयों में और भी है ना, इस तरह से बहुत ज्यादा हमें इसके वर्ल्स दिखते हैं. वर्ल्स सीरीज में वर्ल्स, इस तरह से अगर इसका फ्लोरल फॉर्मा देखते हैं तो इस तरह से वर्ल्स. सो डिफरेंट वर्ल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर. व्हेन वी से देयर मे बी मोर देन वन वर्ल्ड, बड़ा कॉमन सा फ्लावर है जो आप लोग पढ़ेंगे भी इसमें. पॉपी देखना आप, पॉपी के जो फ्लावर्स होते हैं बड़े कलरफुल से, इस तरह से व्हाइटिश ब्लू कलर के, और ऐसा लगता है आईज है. दे हैव डिफरेंट वर्ल्स ओवर हियर. ओके, इस तरह से डिफरेंट वर्ल्स ओवर हियर. सो इफ दे हैव मोर देन और अ डबल वर्ल्ड कंडीशन. अब डबल वर्ल्ड आपको पूछा जा सकता है कि डबल वर्ल्ड किस तरह के फ्लावर्स, या गिव द एग्जांपल. इट इज द पॉपी. देन और मे बी अरेंज स्पाइरली, जैसे अगर आप लोटस भी देखते हैं या फिर लिली देखते हैं तो यूजुअली लिली हैज स्पाइरल अरेंजमेंट. स्पाइरल अरेंजमेंट, इसका एग्जांपल हुआ हमारा लिली. नाउ same conditions over here, again it can be again differentiated into two, that is the polypetalous condition and gamopetalous condition. Okay, poly means, again I am repeating it out, free, and gamo means fused. अब फ्यूज और हमें कहाँ दिख रही है, when the conditions are very much free in the state that some of them are, the petals are usually what, they are free in the sense हमें बहुत, उनके जो पेटल्स हैं कुछ फ्लावर्स के इस तरह से अलग अलग होते हैं. ठीक है, फिर दिस इज अ फ्लावर एंड सम आर माइट बी फ्यूज्ड, जैसे बहुत अच्छे से फनल शेप्ड के हमें फ्लावर दिखते हैं उसके इस तरह से जॉइंट होते हैं. ओके, सो क्या हुआ, फ्यूज्ड एंड जॉइंट फॉर्म में. इसमें इतना पर्टिकुलर आपको नहीं बताया गया, बट हाँ यू कैन गो विद दैट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट नाउ, the important is what is the function of it. The function of, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया क्या, पहले तो ये अट्रैक्ट, बिकॉज दे आर कलरफुल एज वेल एज दे माइट प्रोड्यूस ना फ्रेगनेंस. सो दे आर कलरफुल and produce fragrance. So what is this, what they do, they will attract the insects. Now what do exactly the insect do then, they will help in the pollination, especially the cross pollination जो बहुत important है. ठीक है जी. Now what is the other important function of it, this was the first important function. The second important function of it is that they will, what will happen, they will protect the stamens, they protect stamen and pistil. ठीक है, stamen and the pistil when they form a tube like structure. बहुत अच्छे से हमें पता है फ्लावर का स्ट्रक्चर इस तरह से
अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा अगर इसमें ये स्टेमन हो गए तो माइट बी दीज वन, ये हम बोल सकते हैं कि क्या करता है ये, इसके अगर हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज करें, वी कैन से दैट दीज पेटल स्पेशली व्हेन वो क्लोज स्टेट में होंगे, these protect the pistil form. Okay, they protect the pistil, this all will be covered over here. So we say that this is a structure where petals usually help to protect the inside structure of it. Now what is the third part of, now we'll see the third part, and just change the color, कुछ अच्छा सा कलर नहीं आ रहा है ना. Now the third is the androecium part. Yes, now androecium किसके बोला जाता है, स्टेमन को. Just need to change the color, wait a minute. This is good. Stamens here हमें पता है स्टेमन्स. अब स्टेमन्स में किस तरह से होगा, है ना, इस तरह से पोलन्स प्रेजेंट होते हैं. अभी मैं सिर्फ स्टेमन्स बनाए यहाँ पे. अब स्टेमन्स में क्या अलग होगा, द नंबर वेरीज, है ना. कुछ में देखना आप रोज देखेंगे तो बहुत सारे बंचेस प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, छोटे छोटे से, बहुत सारे. कुछ में ओनली, स्पेशली देखो आजकल हमें कौन से फ्लावर देख रहे हैं, सोचिए कौन कौन से फ्लावर है बाहर. मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपने देखे हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर. बहुत अच्छे से आपको कौन सा दिख रहा है, अभी पी दिख रहा है बाहर, है ना. मूली में भी बहुत अच्छे छोटे फ्लावर्स आ गए होंगे कईयों में. सो इफ यू सी दैट पर्टिकुलर पी प्लांट की बड़ी अच्छी वेरिएशंस है कि उसके स्टेमन्स का अरेंजमेंट ही बड़ा अच्छा सा होता है. अ फ्लावर इफ समवट लाइक व्हाइट कलर का अगर आपको दिखता है ये फ्लावर, उसमें देखना आप इस तरह से व्हाइट कलर का फ्लावर and a small keel like structure is present which actually protects exactly. इसके पीछे क्या है, जो इसके नीचे मैं वो ब्लैक कलर में बनाती हूँ, उसके नीचे जो है वो ब्लैक कलर से इस तरह से अरेंजमेंट है, देखना आप. and it is usually, it actually dignifies if you remove that particular parts. इसको अगर आप remove कर देते हैं, what you will see that these pollens are inside protected in this particular keel. इस keel wise structure से ये इसको protect कर लेता है. and the arrangement is very much different. उसमें से इस तरह से एक बाहर निकला होगा and rest are in bunch. इसमें all are in bunches. Some may have, like if they are taller ones, then few branches or the few stamens will be smaller in height. So exactly क्या हो रहा है stamens में, टाइप में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूज्ड और इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रहा है क्या ये नंबर के हिसाब से ये अलग हो रहे हैं. दे माइट बी वेरी फ्रॉम द फ्यू टू द large or few to large number of the stamens. So according or on the basis of their number they are differentiated on the basis of number. Okay, now how they are, just see here, we usually know that the stamens consist of the filament and the anther. And this is the anther. So the filament and the anther over. Now what exactly these anther? These anther consist of the pollens, or we can say it consists of the pollen sacs which have pollens in them and which will produce the male gametes or the cells. इस तरह से अगर आप स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यू विल फाइंड इट इस तरह से. स्ट्रक्चर ये अजीब सा बन गया कुछ.
इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं which then ruptures, यही सैक जो है rupture होके then these will wither away, the pollen grains will wither away. So we say that generally powdered structure है particles का with different shapes in them. So pollen sacs and pollen grains here. When the endosphere, same condition over here, again can be divided into two types, not two types, I mean they might be, वैसे तो several types है, but basically हम उसको जो आप पढ़ रहे हैं it might be three types of single, double और several groups. ओके ये नंबर पे डिपेंड कर रहा है. व्हेन द स्टेमन्स आर फ्री, वन कंडीशन, व्हेन स्टेमन्स आर फ्री, तो हमने क्या वर्ड यूज किया है, हमने वर्ड यूज किया है इसके लिए पॉलीएंड्रस. ओके द कंडीशन इज द पॉलीएंड्रस. एग्जांपल याद रखिएगा, इट इज पिटूनिया. बहुत सारे फ्लावर्स है पिटूनिया के इस वक्त में बाहर, छोटे छोटे फ्लावर्स में बहुत अच्छे से दिख रहे हैं. सो पिटूनिया और जॉइंट एंड ऑर्गेनाइज्ड. अब अभी तो क्या था, स्टेमन्स फ्री हैं, बहुत सारे स्टेमन्स इस तरह से, कोई अरेंजमेंट नहीं, फ्री है. बट इन सम ऑफ द केस दे माइट बी सिंगली, सिंगली एक ग्रुप में फॉर्म हो रहा है, और इन अ डबल ग्रुप और इन सेवरल ग्रुप्स, मींस they might be now categorized on the basis of their arrangement here when they are singly or in a one group condition. one group, ग्रुप है, देखो एक नहीं है, ग्रुप है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोडेल्फस. मोनोडेल्फस. ओके मोनोडेल्फस, डायाडेल्फस, एंड द थर्ड इज पॉली, क्योंकि सेवरल ग्रुप्स है यानी कि पॉलीडेल्फस. मैं अगेन बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको ये नहीं कोई पूछेगा कि एंथर क्या है, लॉन्ग फिलामेंट क्या है. अब आपको ये पूछा है कि व्हाट इज द पॉलीएंड्रस कंडीशन, और पॉलीएंड्रस कंडीशन किस में देखी जा सकती है. गिव द एग्जांपल ऑफ द पॉलीएंड्रस. सेम एज मोनोडेवल्स व्हेन दे आर यूनाइटेड इन वन ग्रुप, वेरी मच क्लियर, बाय देयर फिलामेंट्स, यानी कि ओनली एंथर्स आर फ्री. हमें बहुत अच्छे से रोज में है ना, देखते ना बहुत सारे इस तरह से हमें एंथर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में दिख जाते हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोडेल्फस. बहुत अच्छा सा एग्जांपल इसमें इट इज चाइना रोज. याद रख लीजिए, एंड कॉटन. अगर आपको कॉटन दिख रहा है व्हाइट और पिंक कलर का जो फ्लावर होता है उसमें देखना बहुत सारे एब्रप्टली, चाइना रोज के ऊपर भी देखेंगे बहुत सारे फ्लावर स्टेमन्स होते हैं. डायडेल्फस कंडीशन, पी का कंडीशन मैंने आपको अभी बताया. पी देखिएगा, ये सबसे बेस्ट है इस वक्त में कंडीशन में देखने के लिए, क्योंकि जब आप एक बार फ्लावर को देख लेंगे यू विल बी एबल टू रिमेम्बर. देखो नेचर है ना, देखोगे रिमेम्बर करोगे, दूसरों को बताओगे और याद हो जाएगा. सो पी हियर, आउट ऑफ हियर दे हैव यूजुअली 10 stamens, एंड फ्रॉम 10 stamens दे अरेंजमेंट इज वन, इस तरह से बाहर होगा, एंड द रेस्ट इज इन ग्रुप्स. और यही कील के अरेंज, जो कील मैं बोल रही हूँ ना, कील मीन्स अ माउथ लाइक हुक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोल सकते हैं, वो इस तरह से उसको क्लोज कर देता है. देखना आप पी का फ्लावर आज ही देखना. ओके सो वी कैन वेरी वेल सी ओवर हियर कि किस तरह से डायडेल्फस कंडीशन होती है, मोनोडेल्फस कंडीशन होती है, एंड दी पॉलीडेल्फस कंडीशन. पॉलीडेल्फस कंडीशन में अलग क्या होता है, पॉलीडेल्फस में अलग इस तरह से होता है कि व्हेन द स्टेमन्स आर अरेंज्ड एट डिफरेंट हाइट्स, एक ग्रुप यहाँ होगा, एक ग्रुप इस तरह से, then again long, and the anthers will be okay. So
डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट हाइट्स प्रेजेंट होता है पॉलीडेल्फस जॉइन एट वन प्लेस। सो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वैसे ये देखने को वाइल्ड में ज़्यादा मिलता है, बॉम्बेक्स में। अब बॉम्बेक्स एग्जैक्टली है क्या? बॉम्बेक्स इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, जैसे स्पेशली हम बोलते हैं कि वहाँ पे बॉम्बेक्स का फ्लावर, अगर मैं आपको बॉम्बेक्स से सिमिलर करूँ, इसमें ये यूजुअली बॉम्बेक्स एक इसका साइंटिफिक नेम है। इसको यूजुअली लोकल में हम अगर कौन से टाइप्स के कॉटन के, वैसे भी होता है सिल्क कॉटन जो होता है ना, सिल्क वाले बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोराई अगर आपने सुना होगा, सिल्क कॉटन ट्री होता है इंडियन में। बट इसको बहुत अच्छे से पता है आपको कौन सा सिंबल का, गांव वाले में अगर आप जाते हो, और आजकल अभी बहुत अच्छे से दिख रहा है, सिंबल का जो ट्री होता है उसमें आपको रेडिश रेडिश फ्लावर्स मिल दिख रहे हैं, देखना। उसमें वो ट्री है, लिटरली बहुत बड़ा ट्री होता है, और आप उसमें ये देखना कि उसमें अभी लीव्स नहीं दिख रहे हैं आपको, सिर्फ फ्लावर्स दिख रहे हैं रेड कलर के। जनरली बहुत बड़ा सा एक ट्री दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, उसमें रेड कलर के सिंबल हम बोलते हैं यूजुअली कॉमनली। अगर किसी और को पता है तो प्लीज मेरे को कमेंट करना। सो दैट इज, उसमें आप देखना बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे ग्रुप्स है, बट ऊपर नीचे अरेंजमेंट होगा इन स्टेमन्स का। देन देन कम्स, अब इससे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि एडल्फस कंडीशन यानी कि ग्रुप ऑफ ब्रदर्स ऐसा बोला गया है, which refers to the different type of the bundle of the anthers. Okay, now the third part, हम थर्ड पार्ट में आते हैं फ्लावर के, that is the gynoecium. See, I'm trying to explain you in a very common way. Okay, and I think so you are able to understand this particular topic, commonly called as कार्पल। पिस्टल वर्ड भी यूज करते हैं, बट इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल। इट इज कंपोज्ड ऑफ वन एंड मोर कार्पल्स। देखो क्या लिखा है, गाइनोशियम इज ऑल्सो नोन एज द पिस्टल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पल्स। यानी कि व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द कार्पल? द स्टिग्मा, जहां पे पोलन सेटल होते हैं, स्टाइल एंड ओके जी, पहले स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। स्टिग्मा वी ऑल नो, they are we can say the knob like structure which appears to be very feathery and sticky. They have a glandular papilla. इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद ये रखना है क्या स्ट्रक्चर में है ये, इसमें ग्लैंडुलर पेपिलास प्रेजेंट होते हैं which help them to stick the pollens। इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, अगर तो यहाँ पे glandular papilla and pollens get seated over here and they help in the landing of that particular pollens. Now what is the style over here? Style is a structure which act as a stalk and enters into the ovary, which is a swollen part of the particular flower. Now they composed of one or many carpels which are fused together over here. अब ये सोलन बेसल पोर्शन जो होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी कार्पल्स, यानी कि बहुत सारे, अगर इस तरह से प्रेजेंट है तो बहुत सारे, माइट भी इस तरह से फ्यूज्ड फॉर्म में बहुत सारे कार्पल्स together form a bundle of locules and each containing a number of rounded bodies which is called as the ovules. Okay, might be inside the group. देखो बेड वो ओव्यूल्स, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ओव्यूल्स है, अगर इस तरह से ओव्यूल ओवरी प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है इनसाइड, दिस इज अटैच्ड to the wall of the ovary by placenta. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, दैट द कवरिंग इज कॉल्ड एज द इंटेगुमेंट, देन द टेस्टा जो भी है, बट वी नो दैट ओवरी अटैच्ड विद द ओव्यूल, ovule, and this is ovary, it is attached by the placenta. So and it is attached by the placenta. Now इसमें लोक्यूल्स में वैसे आपको बताया नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि लोक्यूल्स में ये कैसे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये वही है मोनोडेल मोनो गाइनो स्ट्रक्चर जो होता है, इसका गाइनो स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ग्रुप्स में इस तरह से प्रेजेंट होता है, फिर ये एक बना लेता है। ओके, माइट बी इन अ सिंगल ग्रुप, जिसमें से
सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो, माइट बी इन डिफरेंट ग्रुप्स। सो इस तरह से डिफरेंट, ये हायर क्लास में हम पढ़ते हैं इसको। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि whenever pollens seated on the stigma identifies that particular pollen। अब कैसे पता चलेगा रोज का पोलन रोज वाले प्लांट में, तभी वो पोलन ट्यूब बनाएगा, है ना। अगर वो डिफरेंट स्पीशीज का होता दे विल बी डेड, बट when it is of only of the same species, then only they will be able to form the pollen tube over here। So that is why we differentiate that they might be monoecious as well as dioecious। जो आपका है जनरल टर्म में यू वर्ड यूज किया है मोनोशियस एंड dioecious। Monoecious and the dioecious. Monos again single, and the dioecious means the two one. Now what is the two over here? That stamen and pistil flowers grow on different plants। Dio दो अलग अलग प्लांट है, एक पर्टिकुलर ट्री के या एक पर्टिकुलर प्लांट के दो डिफरेंट, टू डिफरेंट, डाई मीन्स टू ना, तो टू डिफरेंट प्लांट्स आर देयर। लाइक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट इसका, इट इज पीपी, दैट इज पाम एंड पपाया। सेम एज मोनोशियस की कंडीशन में, मोनोशियस में मींस मेल एंड फीमेल फ्लावर ग्रोन ऑन अ सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल प्लांट में बोथ द पार्ट्स आर प्रेजेंट। एम एन एफ आर प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख रही हूं। अब इसका आपको चारों तरफ जितने भी अभी कुकुरबिटेसी वाली फैमिली मिल रही है, मींस कुकुम्बर, पंपकिन, ओके। आजकल तो वैसे हाइब्रिड है, कुछ चेंज भी हो सकता है, बट यूजुअली मेज में बहुत अच्छे से पहचान में आता है। कैसे आता है? जो टसल है उसके जो हेयरी स्टिक लाइक हेयर स्ट्रक्चर्स है वो मेल होते हैं, और जो कोम लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द फीमेल। सो मेज, कुकुम्बर, पंपकिन, सीपीएम, है ना। और डायोशियस में पीपी, ये डायोशियस तो हर जगह काम आएगा। अब देखो टू डिफरेंट प्लांट्स है, यानी कि उसको एक कंडीशंस मोनोशियस तो हुई, और एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या पढ़ा हमने पहले, यूनिसेक्सुअल, है ना, क्योंकि विच हैज ओनली वन ऑफ दीज पार्ट्स, तो यूनिसेक्सुअल हो गया। दो दो प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ड यूज कर, बाइसेक्सुअल वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, इसमें दोनों को प्रेजेंट होगा। देखो कुछ चीजें सिमिलर भी हो जाती हैं, कुछ चीजें डिफरेंट है, बट डायोशियस से ये मत करना कि दो एक में ही प्रेजेंट है, टू डिफरेंट प्लांट्स आर प्रेजेंट है वही है, क्योंकि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द नॉट फ्लावर्स, दिस इज बेसिस ऑफ द गाइनोशियम। गाइनोशियम के बेस पे कैसे अलग किया है, वो ये है कि मोनो है और डाई है, ठीक है। उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, क्या वो सिमिलर एक में प्रेजेंट है, स्टेमिनेट और पिस्टल फ्लावर, या फिर डिफरेंट में प्रेजेंट है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है, मैं इसी में इसको कर लेती हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसी में कवर कर लेते हैं इसको। दैट इज द इनफ्लोरेसेंस, inflorescence। Now what do you mean by the inflorescence over here? It is the mode of arrangement, mode of arrangement of flowers on axis of plant। यानी कि फ्लावर्स कैसे अरेंज है, अभी आसपास में अगर अपने फ्लावर्स देखना तो वो किस तरह से अरेंज है, क्या वो ग्रुप में इस तरह से अटैच है, ओके। कुछ में क्या होगा, एक यहाँ होगा, फिर फ्लावर एक यहाँ होगा, फिर फ्लावर यहाँ होगा, फिर यहाँ इस, तो क्या हुआ, मोड्स ऑफ अरेंजमेंट, एक्सिस में, एक्सिस में वो किस तरह से अरेंज्ड है वो पर्टिकुलर फ्लावर व्हेन दे सिंगली। और ये अगर इसको हम पढ़ेंगे, अगर आप हायर क्लास में पढ़ते हैं, दे माइट बी रेजमोस एंड दी साइमोस टाइप। जनरल जो दो कॉमनली हमें दिखने को मिलते हैं, रेजमोस एंड साइमोस टाइप, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये जो जनरल होता है वो रेसमोस टाइप हो गया, ठीक है।
and when these occur at the different levels of reaching the same level, कुछ ऐसे भी होते हैं when youngest flowers at are in the center and oldest at the periphery, जैसे कि अगर sunflower दिखते हैं तो sunflower का सबसे ऊपर एक फ्लावर होता है, बड़ा सा फ्लावर, फिर उसके छोटे छोटे, है ना। कुछ में इस तरह से होता है, कुछ में क्लस्टर्स में देखना इस तरह से एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, फिर आएगा, फिर नया होगा। तो अरेंजमेंट किस तरह से है, किस तरह से, दैट इज कॉल्ड एज द मोड ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द इनफ्लोरेसेंस। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज ओवर हियर गिवन हियर रिगार्डिंग द व्हाट इज द प्लेसेंटा। अब प्रेजेंटेशन या प्लेसेंटा एक दूसरा टर्म यूज किया गया, छोटे में ही है बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्लेसेंटा एंड प्रेजेंटेशन ओवर हियर। व्हेन वी टॉक अबाउट, हमने बोला था कि प्लेसेंटा कहाँ है और प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछता है बिटवीन द ओव्यूल एंड द ovary or the attach the ovule with the wall of the ovary. Now what is the presentation here? It is the manner in which the ovules are arranged to the wall of the ovary. किस तरह से, manner of arrangement, manner of arrangement, ये डेफिनेशन जैसे लिख रहे हैं वैसे आप बोलोगे आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। मैनर ऑफ अरेंजमेंट, है ना, इन विच द ओव्यूल्स आर अटैच टू, ओव्यूल्स आर अटैच टू ओवरी। ठीक है जी। सो ओव्यूल्स क्या होते हैं, अब लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, दिस ओव्यूल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड, द ओव्यूल इज प्रेजेंट, इस तरह से प्रेजेंटेशन से ज्वाइन होगा, दिस ओव्यूल विल फॉर्म व्हाट, ओव्यूल क्या बना देगा, हमें हमेशा एप्पल का एग्जांपल देखो, ओव्यूल अंदर वाला पार्ट है दैट इज फॉर्मिंग द सीड एंड द ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा, अब ट्रांसफॉर्मेशन वाला हम नेक्स्ट इसमें भी करते हैं। फ्यू ऑफ द थिंग्स ओवर हियर, इफ यू लाइक टू गो विद द क्विज, देखो बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन सब कुछ देख लेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, नहीं। जब तक आप बुक लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, आपको थियोरी नहीं समझ में आएगी। इससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ध्यान रखिए, जितने भी अपने हिस्टोरियंस थे, है ना, हिस्टोरियंस ने अगर बुक, सबने, बहुत सारे थे, कोई एक ही थोड़ा था जिसने बुक लिखी थी, बट हुआ क्या था कि जिसने लिटरेचर लिखा था, मनु ने लिटरेचर लिखा था, इसलिए लोग सब किताबें पढ़ते हैं, उससे जानकारी मिलती है। किसी ने वेद लिखे थे तो उसी से जानकारी, हर बहुत लोगों ने किया होगा बट किसी ने लिखा नहीं होगा, जिसने लिखा वो लिटरेचर बन गया। लिटरेचर आर सो इम्पोर्टेंट, सो एज योर बुक्स ऑल्सो, रीड योर बुक्स फर्स्ट, then see the videos and again then read the books, you topic will be very much clear। और फिर वही बात है, every time try to clear your doubts whether it is of any of the other subjects, जब तक आप doubts clear नहीं करेंगे, don't put your ego above here, try to learn the things है, जितना सीखने की कोशिश करेंगे आप, you will always have the try, you have the power of what, a memory also, क्योंकि आपने सोचा उस टॉपिक के बारे में तो क्या कर रहे हैं आप वापस क्या उसको रीगेन कर रहे हैं थिंग्स को, ठीक है। So I think so this till here we have ended with this chapter, that is the flower। So try to do, I'll just send you the quiz of it today or some of the questions, if you like it out please like and subscribe my channel, thank you, have a nice day।